morning class. Now we further proceed our chapter 1, and the next cell organelle is Golgi apparatus, which is also known as Golgi complex. This is also known as the delivery system of cell. What is the meaning of delivery? Delivery means जिसमें किसी चीज को हम बाहर निकालते हैं, डिलीवर करते हैं, एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाते हैं. तो गोल्गी apparatus जो है वो डिलीवरी सिस्टम ऑफ द सेल के नाम से भी जाना जाता है. When we talk about the structure of Golgi apparatus, these are very small vesicles of different shape, generally located near nucleus. अगर location की बात करें, if we talk about the location of the Golgi apparatus, this apparatus is generally found near the nucleus. The Golgi complex is made up of 3 components. How many components? 3 components. Which one? First one is cisternae, second one is cluster of tubule and vesicle, and third one is large vesicles or vacuoles. What is cisternae? Cisternae, here in the diagram, cisternae is the flat sac-like structure which forms the piles, and cluster of tubules or vesicles and large vesicles or vacuoles. These 3 made the Golgi components. In plant cell and many invertebrates. You know about the invertebrates? Yes, these are the animals without vertebral column or backbone. Yes, then in plant cell and many invertebrates, these Golgi apparatus is known as dictyosome. You have to remember here this term, dictyosome. That what is dictyosome? Then the dictyosome is the Golgi apparatus or Golgi complex which is found in plant cell and many invertebrates. Now the function of Golgi apparatus. First function is, because of delivery system of the cell, the first function of the Golgi apparatus is to deliver any material. First function, helping secretion of mucus, enzyme एंड हार्मोन सीक्रेट करेगा. ये सीक्रेट करेगा किन किन चीजों का? म्यूकस का, इंजाइम का एंड हार्मोन्स का. नेक्स्ट, द फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम. लाइसोसोम इज आल्सो अ सेल ऑर्गेनेली which function as the societal bag of the cell. Then the Golgi apparatus form the lysosome. Help in storage of secretory product. Secretory product को क्या करेगा? ये स्टोर करेगा. एंड ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्ट करना, दैट मीन्स कि वी हैव टू transport something from one place to another place. In this function, the Golgi apparatus which is found near the endoplasmic reticulum, और जब endoplasmic reticulum किसी चीज को बनाएगा वहाँ पे, तो फिर उस चीज को या तो वो सेल के बाहर करेगा या फिर सेल के अंदर ही एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाएगा. तो इस तरह से क्या करेगा? ट्रांसपोर्टेशन का भी काम करेगा. ये था हमारा पूरा Golgi apparatus. Now next cell organelle is ribosome. Ribosome is the site of protein synthesis. This organelle is non-membranous, small granule, may be found attached to the endoplasmic reticulum. जब मैंने आपको endoplasmic reticulum पढ़ाया उस टाइम पे बताया कि राइबोसोम जो है वो उसके सरफेस से भी अटैच्ड होंगे, जिसकी वजह से वैसे endoplasmic reticulum को जिसमें राइबोसोम फाउंड होता है हम रफ endoplasmic reticulum कहते हैं. और ये फ्रीली साइटोप्लाज्म में भी पाया जा सकता है. इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड्स में भी प्रेजेंट होंगे. नाउ द फंक्शन. सिंपली द फंक्शन ऑफ राइबोसोम इज इट इज द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस. नाउ द नेक्स्ट सेल organelle, plastid. Plastid is also known as the kitchen of a plant cell. What is the kitchen? किचन में क्या करते हैं? हम खाना बनाते हैं. उसी तरह से प्लास्टिड जो है वो किसका किचन है? प्लांट सेल का. दैट मीन्स कि प्लांट्स के जो सेल है वो क्या करेंगे? किचन में वो अपना फूड प्रिपेयर करेंगे बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. ये प्लास्टिड्स जो है वो सिर्फ प्लांट सेल में प्रेजेंट होंगे. प्लास्टिड्स को अगर हम बात करें
On the basis of color, these are of 3 types: chromoplast, chloroplast and leucoplast. Now we study one by one to each of these plastids. So first plastid is chromoplast. Chromoplast is fat soluble and this impart yellow, orange and red color. Yellow color because of presence of xanthophyll pigment and orange and red color because of presence of carotene pigment. Because जो हमें कलरफुल चाहिए प्लांट्स में वो क्या क्या होते हैं? फ्लावर और फ्रूट्स जो हमें डिफरेंट कलर में मिलते हैं. तो मोस्टली जो क्रोमोप्लास्ट है वो कलर, क्रोमा वर्ड फॉर कलर एंड प्लास्ट मीन्स फाउंड, यानी कि ये कलर फाउंड, कलरिंग फाउंड होते हैं. तो ये ज़्यादातर कहाँ प्रेजेंट होंगे? फ्लावर में प्रेजेंट होंगे और फ्रूट्स में प्रेजेंट होंगे. यहाँ पे मैंने नोट करके 3 पॉइंट लिखवाए हैं. फर्स्ट वन इज एंथोसाइनिन. कभी कभी हम देखते हैं कि जो फ्लावर्स होते हैं वो डिफरेंट कलर में होते हैं. जैसे हम पर्पल देखते हैं, वायलेट देखते हैं, ब्लू देखते हैं. ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए होता है कि जो कलरिंग पिगमेंट्स होते हैं वो डिसॉल्व हो जाते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर, जिसकी वजह से क्या होगा? ये जो कलर है वो हमें डिफरेंट कलर दिखाई देता है. दूसरा है कि व्हाट इज द रीजन बिहाइंड this that tomato and chili after ripening turn red from green. क्या रीजन है जिसकी वजह से जो टोमेटो और चिलीज होते हैं वो चेंज हो जाते हैं पकने के बाद, हरे से वो लाल में चेंज हो जाते हैं? इसका रीजन ये है कि आफ्टर राइपनिंग धीरे धीरे क्या होगा, जो ग्रीन कलर यानी क्लोरोप्लास्ट होता है, जो क्लोरोफिल होता है वो डिजेनरेट होने लगता है और उस क्लोरोफिल को रेड पिगमेंट यानी कि कैरोटीन जो है वो मास्क कर देता है, जिसकी वजह से क्या होगा कि जो क्लोरोफिल है वो अपना कलर नहीं दिखाएगा क्योंकि वो डिजेनरेट हो गया है. तो रेड पिगमेंट जिसके लिए कैरोटीन रिस्पॉन्सिबल है वो उसको मास्क करेगा और ये कलर जो है वो ग्रीन से रेड में चेंज हो जाएगा. थर्ड है कि कभी कभी अपने कैरोट क्या देखते हैं? ऑरेंज कलर का देखते हैं. ऑरेंज कलर क्यों देखते हैं? क्योंकि उसमें भी प्रेजेंट होता है क्रोमोप्लास्ट. Next plastid is chloroplast. Here chloro word for green and plast means form, यानी कि ये क्या करेगा? ग्रीन कलर का फॉर्मेशन करेगा. तो इसमें क्या क्या प्रेजेंट होंगे? फोटोसिंथेटिक पिगमेंट जिसको क्लोरोफिल कहेंगे. दूसरा कैरोटीनॉइड एंड अदर पिगमेंट्स भी प्रेजेंट होंगे जैसे कि येलो एंड ऑरेंज. Then there is a question arise that if there is presence of other pigment yellow and orange, then what is the reason that we cannot visualize this color? इसका रीजन ये है कि यहाँ क्वेश्चन ये है कि अगर इसमें दूसरे पिगमेंट भी हैं तो क्या रीजन है कि जहाँ भी क्लोरोप्लास्ट है वो हमें कलर ग्रीन ही दिखाई देगा? इसका रीजन ये है कि ये जो अदर पिगमेंट्स होते हैं इनका कंटेंट क्या होगा? काफ़ी कम मात्रा में होगा. क्लोरोफिल जो है वो बहुत ज़्यादा पाया जाएगा. तो जब क्लोरोफिल बहुत ज़्यादा पाया जाएगा तो वो क्या करेगा? अदर पिगमेंट्स के को मास्क कर देगा, जिसकी वजह से उसका कलर जो है वो विजुअलाइज नहीं हो पाएगा. दूसरा कि क्लोरोप्लास्ट में क्या क्या प्रेजेंट होंगे? तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर डीएनए होगा, आरएनए होगा और वेरियस इंजाइम्स होंगे. इंजाइम फॉर व्हाट? विच इज इसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस के लिए जो जो इंजाइम चाहिए होगा वो सभी क्लोरोप्लास्ट के अंदर प्रेजेंट होगा. क्योंकि क्लोरोप्लास्ट क्या है? क्लोरोप्लास्ट इज द किचन ऑफ आवर plant cell. This is the diagram of chloroplast. Chloroplast is double membrane bound organelle. This is the outer layer, outer membrane. This is inner membrane and the fluid which is filled inside the chloroplast is known as stroma or matrix. This is the piles-like grana. Grana is made up of from thylakoid. Thylakoid, what is thylakoid? Thylakoid is flat coin-like structure, and when coin are one after another form a piles, then it is known as grana. कहने का मतलब है जब थैलाकॉइड एक से ज्यादा थैलाकॉइड स्टॉक के रूप में आ जाते हैं तो ये ग्रेना का फॉर्मेशन करेंगे और जितने भी ग्रेना है वो एक दूसरे से लैमिला के द्वारा जुड़े होंगे. लैमिला इज वर्ड फॉर मेम्ब्रेन, यानी मेम्ब्रेन के थ्रू वो एक दूसरे से
जुड़े हुए होंगे, ये सभी है। दिस ऑल अबाउट क्लोरोप्लास्ट। नेक्स्ट प्लास्टिड इज ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट है ल्यूको वर्ड फॉर व्हाइट, और व्हाइट को हम कलर में काउंट नहीं करते हैं, व्हाइट इज कलरलेस, हेंस दिस प्लास्टिड ल्यूकोप्लास्ट इज colorless plastid. But this plastid do an important function, that is it store starch. You have to answer me here that starch mostly found in which plant? This is potato. पोटैटो में सबसे ज़्यादा स्टार्च होता है, इसी वजह से अगर ये क्वेश्चन है कि ल्यूकोप्लास्ट सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है, तो ल्यूकोप्लास्ट सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाएगा? पोटैटो में पाया जाएगा, क्योंकि पोटैटो में क्या है, सबसे ज़्यादा स्टार्च जो है वो स्टोर्ड है। नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेली सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल। रिमेंबर हियर दैट दिस ऑर्गेनेली इज नॉट फाउंड इन प्लांट सेल, दिस इज फाउंड ओनली इन एनिमल सेल. This is small, naked means without membrane, protoplasmic structure, consist of two small granule called centrosome. Here you can see the structure of centrosome. Centrosome is consist of two small granule which is known as centriole, and these centriole is lie at the right angle to each other, right angle to the each other. This line like this. Now the function of centrosome or centriole. It initiate and regulate cell division. जब सेल डिवीजन होगा उस टाइम पे सेंट्रोसोम क्या करेगा? इनिशिएट करेगा, शुरुआत करेगा और रेगुलेट रखेगा सेल डिवीजन को. नेक्स्ट हेल्प इन स्पिंडल फॉर्मेशन. स्पिंडल फॉर्मेशन कब होगा? जब सेल डिवीजन होगा. सेल डिवीजन के टाइम पे जो कि सेंट्रोसोम को क्या होंगे? स्पिंडल फाइबर से अटैच्ड होंगे और अपोजिट पोल्स की तरफ जाने होंगे. जब सेंट्रोसोम अपोजिट पोल्स की तरफ चला जाएगा तो फिर क्या होगा? न्यूक्लियस का डिवीजन होगा और एक सेल से दो सेल बन जाएंगे. तो उस टाइम पे जब सेल डिवीजन करेगा, एक सेल से दो सेल का फॉर्मेशन होगा, तो वहाँ पे स्पिंडल अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर वो फॉर्म होगा, जिससे कि क्या होगा? हमारा क्रोमोसोम अटैच्ड हो जाएगा ड्यूरिंग सेल डिवीजन. Now next cell organelle, lysosome, which is also known as the suicidal bag of cell. Membranous sac है, membrane से बना हुआ sac, sac यानी thyle like structure, bounded off from Golgi body. This is budded off. Budded off that means जब मैंने आपको क्या पढ़ाया था? गोल्गी एपरेटस, गोल्गी बॉडी पढ़ाया था. उस टाइम पे मैंने बताया था कि गोल्गी बॉडी जो है वो हेल्प करेगा, यानी लाइसोसोम का जो है वो फॉर्मेशन करेगा. तो गोल्गी बॉडी के बडेड ऑफ से, वहीं से निकलने से लाइसोसोम का फॉर्मेशन होगा. सुसाइडल बैग ऑफ द सेल कहेंगे. तो आते हैं इसके फंक्शन पे. दैट फंक्शन इंट्रासेलुलर डाइजेशन पे हेल्प करेगा, सेल के अंदर ही डाइजेशन करेगा, डिसॉल्व करेगा डैमेज सेल को. अगर हमारे बॉडी में से कोई सेल डैमेज हो गया है तो उस सेल को भी ये क्या कर देगा? डिसॉल्व कर देगा. ड्यूरिंग स्टार्वेशन, व्हाट इज स्टार्वेशन? जब हम क्या करते हैं? जब हम भूखे होते हैं, जब हमें खाना नहीं मिलता है, हम भूखे होते हैं, उस टाइम पे हमारे लाइसोसोम क्या करेगा? जो हमारे बॉडी में जो फूड स्टोर हो चुके हैं उसको डाइजेस्ट करेगा, ताकि हमें अपने बॉडी के फंक्शनिंग के लिए हमें एनर्जी मिलती रहे. नेक्स्ट है एसोसिएटेड विथ एजिंग. एजिंग यानी एज होने पे क्या होता है? हमारे सेल जो है वो लूजन होने शुरू हो जाते हैं और हमारे सेल भी जो है वो डैमेज होता है. चूँकि सेल क्या होते हैं? डैमेज होने लगते हैं, जिसकी वजह से ये क्या करेगा? एसोसिएटेड होगा एजिंग से भी. दिस ऑल अबाउट लाइसोसोम.